in doubly linked list we have a provision to perform insertion at the beginning, at the end, after the given element, before the given element. Before the given element is added in case of doubly linked list before we because we have the address of the previous element also, यानी कि previous node का भी address हमारा doubly linked list में previous pointer hold करता है, तो we can use that address to allocate any element before the given element, यानी any element which is chosen by the particular यूजर जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के पहले अगर इंसर्ट करना चाहेगा तो उस एलिमेंट को आपको सर्च करना पड़ेगा, एज लाइक वी आर सर्चिंग द आफ्टर एलिमेंट टू परफॉर्म इंसर्शन आफ्टर द गिवन एलिमेंट, वी जस्ट सर्च द बिफोर एलिमेंट एंड आफ्टर completion of the search we perform insertion before the given element. So first of all we discuss insertion at the beginning of the list. Now whenever we are going to perform insertion at the beginning of the list, then first of all we have to check out the list status of the list, whether the list is already containing certain node or not. That means if the list is empty or not, initially we have to check whether the list is initially empty or not. So if the list is initially empty, that means we have to check we have to add the new node as a single and only node of the list. सिंगल नोड वही बनेगा जो ptr नाम से आप नोड क्रिएट करेंगे, वो नोड ही आपका सिंगल नोड होगा whenever you are going to insert that node in the list. So that is the first case here discuss here. पहला केस यही है कि पहला केस में there is a additional head and tail pointer and we are going to connect a new node with this list. So initially because head and tail both contain the null pointer, because no address is assigned into both head as well as tail pointer. तो जो न्यू नोड आपका ptr नाम से बना, उस न्यू नोड के बारे में पहले हम लोग डिसीजन लेंगे कि न्यूली क्रिएटेड नोड अगर आपका हेड या टेल दोनों में नल है या हेड में नल है, इसका मतलब लिस्ट खाली है। तो लिस्ट अगर खाली है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप जो न्यू नोड बना रहे हैं उसका प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नल होगा। क्यों होगा कोमल कुमारी? Sir, because yeah, that only a node we are assigning, sir. Because there is no any previous node before that ptr after joining that ptr to the list into the list, because ptr के previous में भी कोई नोड नहीं है, ptr के next में भी कोई नोड नहीं है, तो we just assign null pointer to both previous as well as next pointer field of the newly created node ptr. That's why the first instruction जो लिखा गया ptr यानी कि इसको राइट टू लेफ्ट पढ़िए, जो लिखा गया ना ptr का प्रीवियस इक्वल टू ptr का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो जस्ट इसको राइट टू लेफ्ट पढ़िए कि वी असाइन नल वैल्यू टू द बोथ नेक्स्ट एज वेल एज प्रीवियस पॉइंटर फील्ड ऑफ द ptr, यानी कि असाइनिंग नल वैल्यू टू द नेक्स्ट पॉइंटर बोथ नेक्स्ट पॉइंटर एज वेल एज प्रीवियस पॉइंटर फील्ड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड नोड ptr. That's why the first instruction is written in that form, ptr previous is equal to ptr ka next is equal to null, and after that we just cross the previous pointer by x and next pointer of ptr by x. That means this is the representation of null pointer. After that to connect this ptr, इस ptr को इस head और tail से connect करने के लिए we have to assign the address of this ptr to both head as well as tail pointer. Are you getting the point? Yes, sir. So that is why the second statement is written here, value at head is equal to value at tail is equal to ptr. That means we are assigning the address of new node ptr to the tail as well as head pointer variable, because this ptr is the only node available in the list. So this ptr become the first as well as last node of the list. That's why the address of ptr is kept by both head as well as tail pointer. Clear? Yes, sir. This is the first case in which the list is empty and we are going to insert the newly created node ptr as a first node of the list. In second case, there may be chance that the list contains at least one or more than one node, एक या एक से अधिक नोड है,
तो यहाँ देखिए पीटीआर हम लोग कहाँ, वी आर गोइंग टू इंसर्ट दिस पीटीआर एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, तो वी जस्ट प्लेस दिस पीटीआर हियर. नाउ आफ्टर प्लेसमेंट वी थिंक अबाउट द प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ दिस पीटीआर. पीटीआर का प्रीवियस और नेक्स्ट सोचेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले तो ये इसका प्रीवियस तो नल होगा पीटीआर का, Yes, sir. इसलिए होगा क्योंकि वी आर गोइंग टू इंसर्ट द पीटीआर एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट. तो बिगनिंग में करने से इसका प्रीवियस प्रीसीडिंग कोई नोड होगा नहीं, तो प्रीसीडिंग नोड नहीं होने के चलते इसके प्रीवियस पॉइंटर को नल कर देंगे. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द पीटीआर. तो नेक्स्ट पॉइंटर इस पीटीआर में किसका एड्रेस होगा, सेकेंड नोड का एड्रेस होगा. यस सर. अब सेकेंड नोड अभी हमने बनाया नहीं है किसी को, अभी ये लिस्ट से जुड़ा भी नहीं है क्योंकि इसका एड्रेस हेड में नहीं है, और हेड में जब जुड़ेगा, हेड में जब इसका एड्रेस आएगा तब ये फर्स्ट नोड बनेगा. तो अब ये पार्ट ऑफ ऑपरेशन यहाँ हुआ. तो दूसरा हम लोग प्रीवियस के बाद दूसरा चीज हम लोग इसके नेक्स्ट यानी पीटीआर के नेक्स्ट के बारे में सोचेंगे कि विच एड्रेस इज असाइंड, यानी कि विच एड्रेस ऑफ विच नोड इज असाइंड टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द पीटीआर. So because the address of this first node is already available with the head pointer variable, because head contains the address of first node. तो head में ये first node का address already available है, तो we can use the address of this first node to assign the address of first node to the next pointer field of the PTR. That's why यहाँ पर जो second line लिखा गया है कि we are assigning the address, value at head means the address of first node to the next pointer field of the PTR. Are you getting the point? Yes, sir. तो पहला चीज तो इसका पॉइंटर का प्रीवियस चेक कर लिए, दूसरा चीज की पॉइंटर का नेक्स्ट चेक कर लिए. पॉइंटर का नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस, इसका मतलब है कि नाउ दिस पीटीआर इज कनेक्टेड विद दिस, बट दिस नोड इज नॉट कनेक्टेड विद दिस पीटीआर. तो इस नोड के बारे में आप सोचेंगे, इस फर्स्ट नोड यानी प्रीवियस जो फर्स्ट नोड है उसके बारे में सोचेंगे. तो उसका भी प्रीवियस चेकआउट करना होगा, बिकॉज द प्रीवियस पॉइंटर फील्ड ऑफ दैट नोड इज असाइन्ड बाय नल, बिकॉज अर्लियर देयर इज नो नोड बिफोर दैट नोड. तो अब आपको चेकआउट करना होगा क्योंकि आफ्टर इंसर्शन ऑफ न्यू नोड एज ए पीटीआर, द प्रीवियस पॉइंटर फील्ड ऑफ दैट नोड इज containing the address of this newly created node. So how we can assign the address of this newly created node to that particular previous pointer field of the existing first node. तो कैसे करेंगे, उस नोड के प्रीवियस में जाने के लिए हमारे पास क्या है, उस नोड का एड्रेस कहाँ है, हेड में सर. हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर थर्ड लाइन लिखा गया कि वैल्यू एट हेड का प्रीवियस, यानी वी आर गोइंग टू असाइन द एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड पीटीआर टू द प्रीवियस पॉइंटर फील्ड ऑफ द फर्स्ट नोड. So address of first node is already available with the head pointer variable. That's why we are mentioning here value at head previous. So previous PTR is assigned to the previous pointer field of the first node. Are you getting this point? Yes, sir. Okay. Finally, ये node आपका first node तो अब इससे जुड़ गया, first node इससे जुड़ गया. अब आपका जो है इस PTR को इस head से जोड़ना है. तो इस पीटीआर को हेड से जोड़ने के लिए इस पीटीआर का एड्रेस हमको हेड में रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर वैल्यू एट हेड इज इक्वल टू पीटीआर, दैट्स ऑल. यहाँ पर आप जैसे ही वैल्यू एट हेड इक्वल टू पीटीआर किए, नाउ दिस पीटीआर इज कनेक्टेड विद द हेड पॉइंटर वेरिएबल. नाउ द पीटीआर बिकम द फर्स्ट नोड एंड दिस वन बिकम द सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड. इस तरह से वेरियस नोड जो आपका अवेलेबल है वो एलोकेट हो गया. नाउ दिस इज द इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट. The same we use whenever we write the function. So we have a head, tail and item which is going to insert at the beginning of the list. First of all, we take the PTR pointer having name PTR. We allocate memory as per the structure of node we have, and after allocation of this node, we just assign item to the info part, because this PTR containing 3 section, 3 section होगा, एक previous pointer, फिर info part and then next pointer. तो info part में item assign करेंगे. Now to assign the previous pointer and next pointer of the PTR, we have to take certain decision. जो decision अभी हम लोग दो लिए. Initially we have to check out whether the list is empty or not. If the list is empty, that means there is no node available with the list. तो ये जो पहला केस था इसमें डाल दिए, क्लियर है. पॉइंटर के नेक्स्ट और प्रीवियस में नल किए,
और वैल्यू एट हेड और वैल्यू एट टेल में पीटीआर का एड्रेस डाल दिए, बिकॉज टेल और हेड में दोनों में एक ही नोड का एड्रेस होगा, और चूंकि आपका लिस्ट में सिंगल नोड है तो वही फर्स्ट और वही लास्ट होगा। तो बिकॉज हेड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड एंड टेल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, दैट्स व्हाई द एड्रेस ऑफ द सेम न्यूली क्रिएटेड नोड पीटीआर इज असाइन्ड टू द हेड पॉइंटर एज वेल एज टेल पॉइंटर। Otherwise, the second case is there. Otherwise, if the value at is not equal to null, that means it is not equal to null, then after else part is executed. तो else part में जो second case हम लोग देखे, you are going to perform insertion at the beginning of the list, and अगर एक भी नोड है, एक से अधिक नोड है, उसके लिए यही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये स्टेप में तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है? No, sir. Are you getting the function? Yes, sir. Yes, sir. No. Then insertion at the end of the list, ठीक है। तो इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट के लिए भी एक चीज तो हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा, यानी कि बिगनिंग से करें या एंड से करें, लिए तो चेक करना ही पड़ेगा कि वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। करना पड़ेगा Yes, ना? sir. तो जो फर्स्ट केस यहाँ पर था वो तो हमको यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, यानी पहला केस जब हेड और टेल, हेड और टेल जो है असाइन्ड बाय नल, यानी कि देयर इज नो एड्रेस, तो उस समय में आपका जो न्यूली क्रिएटेड नोड पीटीआर आप बना रहे हैं वो इंसर्शन ये आपका पीटीआर बनेगा, आइटम कुछ भी होगा। ये फर्स्ट केस है, इसको यहाँ भी चेक करना है कि वैल्यू एट हेड इज इक्वल टू नल। इफ वैल्यू एट हेड इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स द लिस्ट कंटेनिंग नो नोड, so whatever node you are going to insert in that list, that node become the first node of that list. Clear? Now the second case ये हो सकता है कि आपका पहले से हेड और टेल दोनों में डेटा है, यानी कि नोड का एड्रेस है, ज्यादा बड़ा नहीं, हम लोग एक दो नोड को ही इंसर्ट कर लेते हैं। तो पहले से नल है, नल है, इसमें कोई भी डेटा हो सकता है, and you are going to insert this in this position। तो यहाँ तो ये नल होगा ही, इसका एड्रेस आपको यहाँ असाइन करना होगा, इसके प्रीवियस नेक्स्ट को आपको पीटीआर से असाइन करना होगा, इसके नेक्स्ट तक जाने के लिए इस टेल का यूज करेंगे। तो टेल का वैल्यू एट टेल का नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट नोड का नेक्स्ट आएगा और उसमें हम पीटीआर का एड्रेस असाइन करेंगे और फाइनली इसका एड्रेस पीटीआर में टेल में डालेंगे। दिस इज द केस। तो पहले वाले केस में क्या करना है, पहले वाले केस में तो सिंपली हम लोग को चेक करना है वैल्यू एट हेड अगर और टेल नल है, वैल्यू एट हेड नल है, तो जो काम आप वहां किए थे वही काम यहाँ भी करना है, यानी पीटीआर के प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। दूसरा, इस पीटीआर का एड्रेस हेड और टेल दोनों में डाल देना है, हेड इज इक्वल टू टेल पीटीआर।
ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या क्या करना है? दूसरा केस में सबसे पहले ये पीटीआर अब आपका लास्ट नोड, यानी कि अगर लिस्ट खाली नहीं है तो ये लास्ट नोड जो है इसके ठीक बाद ये लास्ट नोड बनने जा रहा है पीटीआर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पर कि पीटीआर के नेक्स्ट में नल होगा। क्लियर है ना? Yes, sir. इसके बाद पीटीआर के प्रीवियस के बारे में भी हम लोग डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तो आइटम हम लोग ले लिए, जो भी आइटम का वैल्यू है। पीटीआर के प्रीवियस में क्या एड्रेस होगा? यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पीटीआर का प्रीवियस में नल किए थे, क्योंकि हम फर्स्ट नोड इंसर्ट करने जा रहे थे। यहाँ पर हम लास्ट नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो पीटीआर के नेक्स्ट में नल कर दिए। तो यहाँ पर पीटीआर का नेक्स्ट में वैल्यू एट हेड किए थे, क्योंकि आपका पीटीआर के नेक्स्ट में जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको रखना था। तो यहाँ पर पीटीआर का प्रीवियस में किस नोड का एड्रेस रखना है? लास्ट नोड का ना। Yes, sir. इस लास्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर है? टेल में। Tell me, sir. Tell me. हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू एट टेल लिख सकते हैं ना, पॉइंटर का प्रीवियस। तो जैसे ही टेल किए तो ये इससे कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी ये लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है उसमें नल है। Sir, हाँ, sir, if we solve this particular problem using non-parameterized form, there you wouldn't have written star tail, sir. But here you are writing star tail in case of assigning the value of previous pointer in PTR, sir. So, sir, why you are writing star tail, sir? Then it, where I am not writing star head or star tail. sir, in non-parameterized form, sir, where in each function, sir, where we will doing that. So here, there you wouldn't have written star tail or star head, sir. Because we are using single pointer. Here we are using pointer to pointer, yani we are keeping the address of any pointer in another pointer variable. Because whenever we are moving the pointer, the actual data is not moved. We are just moving the data for taking decision. ठीक है ना? तो जब भी आप पॉइंटर टू पॉइंटर लेंगे तभी पॉइंटर वैल्यू एट टेल ले रहे पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए। इफ यू आर यूजिंग सिंगल पॉइंटर देन यू डायरेक्टली राइट टेल हियर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. नाउ अब इस लास्ट नोड का बताइए, ये कोमल कुमारी आप ही बताइए, इस लास्ट नोड के नेक्स्ट में जाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? जिसमें पीटीआर का एड्रेस रखना है। वैल्यू एट टेल का नेक्स्ट, वैल्यू एट टेल कंटेन द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में पीटीआर डाल रहे हैं, तो वैल्यू एट टेल का नेक्स्ट, यानी वी आर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ न्यू नोड टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द लास्ट नोड। तो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द लास्ट नोड का एड्रेस टेल में है, तो वी जस्ट राइट वैल्यू एट टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. नाउ ये आपसे ये पीटीआर से ये नोड कनेक्ट हो गया। अब इस पीटीआर का एड्रेस आपको टेल में रखना है, तो फाइनली व्हाट यू राइट? वैल्यू एट टेल इज इक्वल टू PTR. तो यही स्टेप्स आपको फंक्शन में लिख देना है। इसी चीज को लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप एग्जामिनेशन में, ठीक है ना? जो लाइन ऑफ कोड किया उसको राइट टू लेफ्ट लिखिएगा, लैंग्वेज लिख दीजिएगा। जैसे इसको लिखना है अगर लैंग्वेज में, तो इसको लिखेंगे कि असाइनिंग नल वैल्यू टू द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड एज वेल एज प्रीवियस पॉइंटर फील्ड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड नोड पीटीआर। इसको अगर लिखना होगा तो इसको लिखेंगे वी असाइन द एड्रेस ऑफ न्यू नोड पीटीआर टू बोथ हेड एज वेल एज टेल पॉइंटर वेरिएबल, because this is the only node exist in the list, so the address of this node is held by head as well as tail pointer variable. Now you can write the function. Yes, sir. तो बस इसको फंक्शन में केवल यही कंडीशन को डाल देना है। वहां पर इस कंडीशन को डालने के पहले ये चेक कर लेना है कि हेड इज इक्वल टू नल, वैल्यू एट हेड इज इक्वल टू नल। तो फंक्शन वी हैव, रिटर्न तो कराना नहीं यहाँ से, void
insert and int item. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ptr नाम का नोड क्रिएट करने के लिए फिर ptr क्रिएट करेंगे malloc size of n, देन ptr के info में item असाइन कर देंगे. इसके बाद यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे इफ अगर ऐसा होगा तो ये पहला वाला केस यहाँ पर आ जाएगा. else यानी अगर लिस्ट में पहले से नोड है तो उस केस में ptr का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ptr का प्रीवियस वैल्यू एट टेल और वैल्यू एट टेल का नेक्स्ट इक्वल टू ptr और वैल्यू एट टेल इक्वल टू ptr. ठीक है, क्लियर है ना? यस सर. क्लियर है. तो आफ्टर का आप लिख के देखिए तो आफ्टर इंसर्शन आफ्टर द गिवन एलिमेंट यू विल गेट द क्लू फ्रॉम सिंगल लिंक लिस्ट. सिंगल लिंक लिस्ट जो लिखे थे उससे क्लू मिलेगा. ट्राई टू राइट द पर्टिकुलर फंक्शन. हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. इंसर्शन आफ्टर द गिवन तो ट्राई टू राइट द फंक्शन. इसमें हमको लोकेशन सर्च करना पड़ेगा इफ वी आर यूजिंग पैरामीटर. अदरवाइज विदाउट पैरामीटर में आप एक एक करके मूव करके भी वर्कआउट कर सकते हैं कंपेयर करते हुए. इंसर्शन आफ्टर द गिवन एलिमेंट अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. I have sent you on your ठीक है. sir. By single pointer sir also we can address the next pointer field of the next node sir. If I am like if I am on node 1 sir and I want to access the next pointer field of node 2, so I'm just by using the arrow operator sir we can just easily access the next pointer field of second node sir. Yes, you have to write value at head का next का previous. Yes sir. So value at head का next give you the address of second node, and whenever you write its previous, that means the previous pointer field of the second node. So yes, you have to write in this manner: value at head next. ठीक है ना? का next sir. Yes. Previous या next आगे उसके थर्ड में जाना है ना? अगर प्रीवियस में जाना है नेक्स्ट में जाना है सर. सेकंड वाले का नेक्स्ट में. हाँ तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट. लिख सकते हैं सर. हाँ
यस और इसमें जो भी आपको असाइन करना है। सर, ये जो दूसरा ब्रैकेट लिए हैं सर, हेड के नेक्स्ट के लिए ब्रैकेट, वो जरूरी नहीं ना सर? कोई जरूरी नहीं, यस डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इंसर्शन आफ्टर द गिवन एलिमेंट में सबसे पहले तो हमको लोकेशन सर्च करना पड़ेगा। अगर लोकेशन नल होगा इसका मतलब है कि एलिमेंट आपका अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद आपको है, जैसे आप डिस्प्ले कराए 1 2 3 4 5 है और यूजर ने आफ्टर एलिमेंट डाल दिया 7, तो 7 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका इंसर्शन नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि आप पीटीआर नाम का नोड बनाएंगे, उसके इन्फो में आइटम असाइन करेंगे और फिर लोकेशन के नेक्स्ट, यानी कि जहां पर आपका लोकेशन आप जो आपको मिला उसके नेक्स्ट को आप चेक करेंगे। अगर उसका नेक्स्ट नल होगा, इसलिए नेक्स्ट को चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर आफ्टर गिवन एलिमेंट करना है, तो ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपका आफ्टर एलिमेंट लास्ट नोड तो नहीं है। तो अगर लास्ट नोड है तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, अदरवाइज अगर लास्ट नोड नहीं है तो कहीं पर भी होगा तो उसके लिए एक ही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। whether I write the function directly? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So void insertion after given element में we use single pointer for head, double pointer for tail, after element item. बिकॉज हेड को हम हेड का एड्रेस, हेड में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हेड का केवल एड्रेस एक बार एलोकेट कर रहे हैं अनदर पॉइंटर में, इसलिए देयर इज नो नीड टू टेक पॉइंटर टू पॉइंटर इन दिस केस, बट वी कैन यूज द टेल, दैट्स व्हाई हियर वी यूज द डबल पॉइंटर, बिकॉज यहाँ पर हमको टेल का जो है मूवमेंट होगा, आपका लास्ट नोड अगर है तो वहां पर टेल भी चेंज होगा। हेड में केवल पहली बार हम लोग लोकेशन जब सर्च करेंगे तो केवल पहला नोड का एड्रेस के लिए हेड को यूज करेंगे, उसके बाद हमारा लोकेशन पॉइंटर ही आपका मूव होगा, हेड पॉइंटर मूव नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई हियर सिंगल पॉइंटर, हियर वी आर यूजिंग डबल पॉइंटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिक्लेयरिंग one ptr, and for location we just take as like insertion after the given element in single linked list. Here additional tail pointer is added, rest remains similar. So first we check location, यहाँ पर किसका एड्रेस डालेंगे? Head का Sir, head का sir. अगर हम हेड का एड्रेस पीटीआर में डाल लें, ठीक है, पीटीआर इक्वल टू हेड, तो हमको हेड को नहीं यूज करना होगा, पीटीआर को ही भेज देंगे, पीटीआर हेड की जगह पीटीआर। तो लोकेशन इज इक्वल टू सर्च और आफ्टर, है ना, आफ्टर एलिमेंट। Yes, sir. तो Yes, sir. इफ लोकेशन इज इक्वल टू नल, इसका मतलब है कि कोई आफ्टर एलिमेंट मिला ही नहीं, तो कर्सर इज रिटर्न डायरेक्टली। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग को क्या चेक करना होगा, कहीं आपका जो है लोकेशन लास्ट नोड तो नहीं है, तो लोकेशन लास्ट नोड नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे कस्तूब? या इसके पहले, अब तो ये कंफर्म है कि लोकेशन नल नहीं है, तो नल नहीं है तो हम लोग पीटीआर क्रिएट कर सकते हैं नोड, लेकिन पीटीआर में पहले हम लोग असाइन कर दिए ना पीटीआर पॉइंटर में,
तो पहले नोड वहीं पे इंसर्ट करना चाहिए था। ये इक्वल टू हेड कर दिया, ptr नाम का पॉइंटर है। ठीक है, इसमें केवल पॉइंटर को मैं एड्रेस असाइन किया है, अभी पॉइंटर एलोकेट नहीं किया, पॉइंटर के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, केवल एड्रेस ptr में असाइन हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू असाइन द नो, तो यहाँ पर असाइन करेंगे तब तो मेमोरी एलोकेट करना। तो here we just pass the address of head here first time, whatever address of head you have, and next here we create a memory for ptr malloc size of n, ठीक है ना, और इसके इन्फो में आइटम है इसमें। नाउ वी चेक इफ आपका जो लोकेशन है कहीं लास्ट नोट नहीं है, इसके लिए क्या चेक करेंगे कौस्तुभ? सर जो लास्ट नोड जो मिला है उसके अगर नेक्स्ट में अगर नल होगा तो वो लास्ट नोड होगा हाँ, सर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? लास्ट नोड को हम लोग लोकेशन से पॉइंटर से एलोकेट कर रहे हैं क्योंकि लोकेशन में ही एड्रेस है। यस सर, तो So इक्वल location टू equals to null. नेक्स्ट का नल सर। If location next pointer field of the location is null, that means कि you are going to insert the new node ptr at the end of the list, ठीक है ना? यस सर, यस सर, तो जो एंड का जो लॉजिक था वही यहाँ लग जाएगा। यस सर, एंड में क्या था? ptr के नेक्स्ट में नल, यस सर, ptr के नेक्स्ट में नल, ptr के प्रीवियस में वैल्यू एट टेल, यस सर, ptr के प्रीवियस में, और वैल्यू एट टेल का नेक्स्ट में ptr और वैल्यू एट टेल इक्वल टू ptr, यही है ना? यस सर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले ptr का नेक्स्ट आपका नल होगा, इसलिए कि वो लास्ट नोड बनने जा रहा है, तो उसका नेक्स्ट नल होगा, फर्दर सक्सीडिंग कोई नोड नहीं है। यस सर। उसके बाद ये ptr का नेक्स्ट नल होने के बाद लोकेशन का नेक्स्ट क्या होगा? ptr के नेक्स्ट को चेक करने के बाद इमीडिएटली पीटीआर हो जाएगा सर। लोकेशन के नेक्स्ट में ptr का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद सर वैल्यू ऑफ टेल का प्रीवियस, नेक्स्ट सर वैल्यू ऑफ टेल। हाँ ठीक है, ptr का प्रीवियस भी तो चेक करना होगा। यस सर, ptr के प्रीवियस में किसका एड्रेस होगा? टेल का सर। लास्ट नोड का, ठीक है। एंड देन फाइनली वैल्यू ऑफ टेल का नेक्स्ट। ना वो तो हो गया, लोकेशन को ही तो हम हाँ next यस पे यस सर, सॉरी सर, तो वैल्यू एट टेल में पीटीआर हो जाएगा सर। यानी कि ये आपका नोड है, और यहाँ पर ये नोड आपका यहाँ इंसर्ट हो रहा है, तो इसके नेक्स्ट में तो नल हो ही गया, ये इससे जुड़ गया, और ये आपका चूंकि लोकेशन है तो लोकेशन के नेक्स्ट में आप ptr का एड्रेस डाल दीजिए, ptr है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे जोड़ना है, तो यहाँ पर वैल्यू एट टेल इक्वल टू ptr कर दिए, तो वैल्यू एट टेल में ptr का एड्रेस डाल दिए। ये 4 लाइन लिखने से ये काम आपका हो गया, ये ptr जुड़ गया। अगर ऐसा नहीं है, लोकेशन का नेक्स्ट नल है, तो ये लोकेशन आपका कहीं और हो सकता है। ये 2 है, अगर 2 3 है तो दूसरा नोड भी हो सकता है, पहला नोड भी हो सकता है। तो एल्स सपोज करो कि आपका लोकेशन यहाँ है, ठीक है। तो
अगर यहाँ लोकेशन है तो आपका पीटीआर आफ्टर कहाँ जुड़ रहा है, इस लोकेशन यहाँ जुड़ रहा है ना। यस सर। इसका मतलब इसका प्रीवियस में भी कोई नोड का एड्रेस है, नेक्स्ट में भी कोई नोड का एड्रेस है, तो इसका ना प्रीवियस नल होने जा रहा है ना नेक्स्ट नल होने जा रहा है इस केस के लिए। तो अभी जो आपका विनायक जो बोला था वो चीज यहाँ पर अप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीटीआर के प्रीवियस में किसका एड्रेस होगा, लोकेशन का लोकेशन सर। का sir. लोकेशन के नहीं। तो पीटीआर का प्रीवियस को चेक करेंगे पहले। पीटीआर का प्रीवियस इज इक्वल टू एलओसी, क्लियर। यस सर। इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, इसके नल टेल नहीं का होगा, सर। नल नहीं होगा, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस टेल होगा। का। यानी ये जो नेक्स्ट Succeeding नोड node. है इस नोड का एड्रेस इसके नेक्स्ट में होगा ना लोकेशन के। यस सर। तो अगर Yes. हमको पीटीआर का नेक्स्ट में ये वाले नोड का लोकेशन के बाद वाले नोड का एड्रेस रखना होगा तो क्या करेंगे, लोकेशन का Location next का सर। next sir. हाँ, तो ये पीटीआर का नेक्स्ट, यानी कि अब ये दोनों चेक हो गया। अब हमको लोकेशन का नेक्स्ट को चेक करना है और लास्ट नोड का प्रीवियस को चेक करना है, यही ना करना है। यस सर। Yes sir. पहले Location का next. लोकेशन के नेक्स्ट, पहले इसको चेक कर देंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे ना। यस सर। तो पहले इसको चेक करने से पहले इसको चेक करेंगे प्रीवियस। लोकेशन का नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, जैसे ही लिखे लोकेशन का नेक्स्ट तो हम इस नोड पर चलेगा ना। यस सर। Yes sir. और इस नोड का कौन सा पॉइंटर हमको चेक करना है, प्रीवियस प्रीवियस। पॉइंटर। प्रीवियस। उसमें सर लोकेशन का एड्रेस असाइन कर देंगे। हाँ, उसमें न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर देंगे। यस सर। पीटीआर। ये समझ में आया। यस सर। इसको ब्रैकेट में इसलिए रखें कि लोकेशन के नेक्स्ट से हम दूसरे नोड पर पहुंचे, लोकेशन के बाद वाले नोड पर पहुंचे, फिर उस नोड में नेक्स्ट का चेक करना है या प्रीवियस तो प्रीवियस पॉइंटर में देन वी असाइन न्यूली क्रिएटेड एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड पीटीआर। और फाइनली we have to assign the address of newly created node ptr to the next pointer field of the location। तो क्या करेंगे, Next one to field. पीटीआर। PTR. क्लियर। Yes sir. तो बिफोर के लिए लिखिए, तो हमको लगता है बिफोर के लिए आप लिख सकते हैं। बिफोर के लिए आपको टेल पॉइंटर लेना भी नहीं पड़ेगा, केवल हेड से हो जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं लेना पड़ेगा विनायक, व्हाट सर? बिफोर के लिए टेल पॉइंटर लेने का जरूरत नहीं है, क्यों। क्योंकि सर हमेशा इंसर्शन तो टेल अगर लास्ट नोट पे भी करेंगे तो उससे पहले ही करेंगे सर। यानी प्रीवियस से हमेशा। मतलब हमको, यस सर, प्रीवियस मतलब सर प्लीज चेक योर व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप प्लीज चेक सर। व्हाट्सएप कर दिए। बाकी लोग लिखने का कोशिश कीजिए, खुद से लिखिए तो एक बार। तुम पहले से लिख के रखे हुए हो क्या, इसको फोटो खींच के भेज देते हो। नो सर, कर मतलब सर सिंगली सर ऑल द concepts are like correlated to the single linked list sir, most Yes, of the yes, concepts. that's why once the single linked list is clear, then doubly linked list or any types of linked list is clear। Yes sir. यहाँ You पर can write स्कोप, यहाँ पर स्कोप ज्यादा है, ठीक है। yes sir, and here sir in doubly linked list sir we are it is making our work also easier sir, because Yes, providing the two pointer fields, so accessing is also very much easier. Yes, head and tail both works efficiently whenever we require any types of data from the list।
नो बिफोर में भी आपको वो पीटीआर तो पहले क्रिएट करना ही है। यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा, वहां पर लास्ट नोट चेक किए थे, यहाँ पर फर्स्ट नोट चेक करना पड़ेगा, कहीं आपका इंसर्शन फर्स्ट नोट के पहले तो नहीं करना है। तो उसके लिए लोकेशन का प्रीवियस अगर नल है तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग जैसे करते हैं वैसे ही होगा। पीटीआर का प्रीवियस में सर फिर असाइन कर देंगे नल, फिर पीटीआर का एड्रेस को असाइन कर देंगे हेड में सर। पीटीआर के सर पीटीआर के नेक्स्ट में पहले हेड का एड्रेस असाइन कर देंगे। एक मिनट, ले लेंगे, टाइटल लेने के बाद हम यहाँ करेंगे, प्रिंट करेंगे, रेडी चेक करना पड़ेगा। बिफोर कंडीशन चेक करना पड़ेगा। 26 बच्चे हैं, 25 पॉइंटर का प्रीवियस इक्वल टू नल एंड देन पॉइंटर नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड सर, वैल्यू ऑफ हेड। पॉइंटर के नेक्स्ट में ओके। and head value at head equal to PTR. The वैल्यू value at head equal to PTR. पहले पीटीआर असाइन। और जो आपका पहले जो नोड है उसका प्रीवियस को भी तो चेक करना पड़ेगा। यस सर। इसलिए पॉइंटर Yes के sir, तो नेक्स्ट उसमें PTR में डालना पड़ेगा। हेड Value का of प्रीवियस head में का सर PTR previous। डाल देंगे। लोकेशन के प्रीवियस में पीटीआर, then head equal to PTR, अदरवाइज कहीं पर भी होगा, सेकंड नोड हो थर्ड नोड हो तो वही चीज है। लोकेशन के प्रीवियस का, लोकेशन के प्रीवियस का नेक्स्ट, PTR then PTR, क्योंकि यहाँ पर ये जो केस है इसमें यहाँ पर आपका PTR ऐड हो रहा है। तो इसके नेक्स्ट प्रीवियस में नल, इसका एड्रेस यहाँ, इसका एड्रेस यहाँ, यहाँ आइटम है। इस केस में
सपोज करिए कि ये लोकेशन है, तो इसके पहले यानी कि यहाँ पर आपको ये पीटीआर ऐड करना है इन दोनों के बीच में। तो चेकआउट पीटीआर का प्रीवियस, ठीक है ना, पीटीआर ये आपका है, पीटीआर का प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस होगा। ये नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? इस लोकेशन से। तो पीटीआर का प्रीवियस में हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं? लोकेशन का प्रीवियस। तो लोकेशन के प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये इससे जुड़ गया, इसके नेक्स्ट में प्रीवियस, पॉइंटर के नेक्स्ट में लोकेशन, पॉइंटर के नेक्स्ट में इस एलओसी का एड्रेस डाले तो ये इससे जुड़ गया। अब एलओसी का प्रीवियस का नेक्स्ट, यानी कि ये जो आपका नोड है इसके नेक्स्ट में पीटीआर का एड्रेस डालना है। तो लोकेशन हमारे पास है, लोकेशन के प्रीवियस में गए, प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस है, तो इस नोड के नेक्स्ट में हमको पीटीआर असाइन करना है। तो लोकेशन का प्रीवियस का नेक्स्ट वी जस्ट असाइन पीटीआर हियर। तो ये इससे जुड़ गया। एंड देन लोकेशन के प्रीवियस में पीटीआर का एड्रेस असाइन करना है, तो वी जस्ट असाइन एड्रेस ऑफ पीटीआर टू द लोकेशन प्रीवियस। तो ये इससे जुड़ गया। इज इट क्लियर? आइटम है यहाँ का नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। In next class में we just discuss the program as well as deletion function, ठीक है ना, program for doubly linked list. So before that you just try to write the program structure using the single linked list. Single linked list का जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करके आप पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख के रखिएगा, ताकि आप में से किसी को हम शेयर करने के लिए जब बोलें तो आप शेयर कर लीजिएगा। डिलीशन फंक्शन को ऐड करके हम लोग उसको प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। इज इट ओके?